Hi there. Today we are going to study about adjective. D is silent there, so it's spoken as adjective. Adjective. Now you should know the different types of adjective. We'll only just name them. Some governments have conveyed as 6 or 7 types of adjectives. Adjective of quantity, adjective of number, adjective of quality, demonstrative adjective, possessive adjective, emphasizing adjectives, and so on and so forth. Today we are going to study about comparative adjective. Now in some of the grammar books you will find as degrees of comparison. So let's label that comparative adjectives. What is comparative adjectives? The word itself shows there is a comparison between adjective. Comparative adjective is used to examine or judge on things in relation to another thing in order to show the points of similarity or difference. Is used to examine or judge, that is, if there is quality such as cleverness between two persons, so we can compare who is cleverer than the other. Here I am using the word cleverer. So that sort of thing that we are going to study today. Comparative, comparison of one adjective to the other person's adjective. When you want to say that things are equal in some way, we use the structure as and then in between adjective or adverb and as. This is called positive degree. As I told you in the beginning, degrees of comparison. The other name that we can give to our topic is degrees of comparison. So this is called positive degree. How to use it? The structure as, then use adjective or adverb in between and as. Example, she is as beautiful as her sister. She is as beautiful as her sister. You can see I am using the word as in the beginning as well as in the end of the word beautiful. So I am using with adjective. You can use with adverb. Drive as fast as you can. Here both the examples are the examples of positive degree. So what is the structure? How to make positive degree? Is by putting as. She is as beautiful as her sister. Here the quality beautiful or the adjective beautiful is equivalent. Both of them are having equal quality. So when we want to compare, but when both of them have equal quality, then we can use the positive degree, and the structure is we have to use as in beginning and end of that adjective or adverb. This is how we make positive degree. Here I want to make it one more thing clear is we can also use so and as. कैसे यूज करेंगे अब थोड़ा सा हिंदी में समझाएंगे इसको क्योंकि हर कोई समझना है. It's also for the basic students who are or the people who are learning basics of English learning. जब हमें कंपेरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो हम सो और एस यूज करेंगे. पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे. अब देखो ये ग्रामर बुक में आपको क्लियरली नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ. सो यही फर्क है ईच चैनल में और बाकी चैनल में कि कोई पर्टिकुलर ग्रामर बुक पढ़ के आपने चैनल बना दिया ऐसा नहीं पाओगे. यहाँ जो सटल डिफरेंसेस है द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी फाइंड वो बताया जाएगा. द सटल डिफरेंसेस ऑफ ग्रामेटिकल पॉइंट्स यहाँ समझाया जाएगा. तो पॉजिटिव डिग्री ऐसे ही बनाना है आपको. तो आप
एस लगा सकते हैं, लेकिन जब आप कंपेरेटिव से इसको पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपको आगे सो और एस लगाना है। जैसे कि रमेश इज टॉलर देन सुरेश, अब उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। रमेश इज टॉलर देन सुरेश, सुरेश इज नॉट सो टॉल एज रमेश, सुरेश इज नॉट सो टॉल एज रमेश, नॉट सो डाला मैंने, देखो सो टॉल एज रमेश, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव बनाने नॉट एज टॉल एज रमेश ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा टॉल है रमेश, और इसलिए हम लोग सो एस भी यूज कर सकते हैं। We'll study this in the subsequent examples, आगे हम देखेंगे। But when we talk about difference between two things, we use more or less. It is used with words having two or more syllables. It's never used with one syllable. Syllable जो है वो हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपको समझाया जाएगा डिटेल में। हॉट, हॉट में एक ही सिलेबल है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इसमें 5 सिलेबल है, एग्जामिनेशन, उसको सिलेबल कहते हैं। ब्रेथ, कितने ब्रेथ में एक शब्द बोला जाता है, उसमें भी स्ट्रेस होता है। जो 2 सिलेबल है, 2 से ज्यादा है, वहां पे हम मोर वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट दैट इज बीन स्ट्रेस्ड हियर। लेट्स गो इनटू द कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो हमें एस लगा कर सकते हैं अथवा सो और एस लगा कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, हम पीछे ER लगा देते हैं। We use ER at end to show the difference. For example, Kanu is taller than Manu. Kanu is taller than Manu. यहाँ देखिएगा टॉलर कर दिया क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन में इक्वल क्वालिटी नहीं है। इक्वल क्वालिटी होता है तो हमें पॉजिटिव डिग्री यूज किया जाता है। यहाँ पे कौन ज्यादा टॉल है, कन्नू। So when you talk about the difference between two things, जब हम 2 से ज्यादा, जब हम डिफरेंस बताते हैं, you can see the difference between things, तब ये यूज किया जाता है। ओके, इस टाइम we use R to show the difference. This is called comparative degree. अब आ जाए superlative degree. Gopal is the tallest boy in the class. Tallest, आपने देख लिया हो पीछे EST लगाया, तो पीछे EST लगा के हम superlative डिग्री बना सकते हैं। superlative क्या, सबसे ज्यादा, वो हम कंपैरेटिव में ज्यादातर 2 लोग के बीच में क्वालिटी दिखा रहे हैं या कंपेयर करते हैं। यहाँ पे सब लोग के बीच में गोपाल जो है पूरे क्लास में सबसे ऊंचा है, सबसे टॉल है। गोपाल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन and is called superlative degree. Thus we have 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. वापस एक बार समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, शीला इज एज क्लेवर एज मीना। अब इसमें देखो शीला और मीना दोनों में क्लेवरनेस की जो क्वालिटी है वो इक्वल है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं एस पॉजिटिव डिग्री। शीला इज एज क्लेवर एज मीना। इन द सेकंड सेंटेंस यू कैन फाइंड कंपैरेटिव डिग्री, मीना इज क्लेवरर देन राधिका। मीना जो है राधिका से ज्यादा क्लेवर है। इसमें दोनों एक जैसे, शीला एंड मीना, लेकिन दोनों क्लेवर है, दोनों की क्लेवरनेस की क्वालिटी एक जैसे, लेकिन इसमें मीना जो है ज्यादा क्लेवर है, तो ज्यादा क्लेवर बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्लेवरर हो जाता है। ज्यादा मीना इज क्लेवरर देन राधिका। सुपरलेटिव डिग्री, सुशीला इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसमें क्या हुआ,
क्लास में जो लड़कियां हैं या बॉयज हैं, सबसे ज्यादा होशियार कौन है? सुशीला। सुशीला इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। सो यू कैन फाइंड दैट क्लेवर वर्ड है, उसका 3 पैटर्न पकड़ रहा है। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। क्लेवर इज पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरर इज कंपैरेटिव डिग्री एंड क्लेवरेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो पीछे ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनता है, पीछे EST लगाने से सुपरलेटिव वगैरह। तो दिस इज हाउ वी मेक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। और तीनों का मीनिंग चेंज होता है। यहाँ पे देखो इक्वल क्वालिटी है, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ सबसे ज्यादा। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज सुपरलेटिव डिग्री। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो थोड़ा सा हमें वर्डिंग्स चेंज करना पड़ता है। जैसे सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव जाएंगे। सुपरलेटिव, अशोक इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। द बेस्ट, सबसे अच्छा लड़का है क्लास। कंपैरेटिव, अशोक इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। उसी को मेरे को कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में, उसी को, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हियर। अशोक इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। आपने देखा हो, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट करके कर दिया, बेटर कर दिया कंपैरेटिव। लेकिन बेटर डालने के मीनिंग चेंज नहीं करना, इसलिए क्या करना पड़ा, मैं इज बेटर देन, क्योंकि कंपेयर कर रहा है बेटर देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय, ठीक है। तो बॉय का कंपेयर कर रहा है, मेटल का कंपेयर कर रहा है मेटल्स में, जैसे गोल्ड वगैरह, तो हम कहेंगे देन एनी अदर मेटल्स, ठीक है। गोल्ड इज बेटर देन एनी अदर मेटल्स, देन एनी अदर, ये डालना जरूरी है इन द स्ट्रक्चर। कंपेरेटिव बना रहे थे, स्पेशली फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव। अशोक इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कैसे हो जाता है, अशोक इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अच्छा, उसी को पॉजिटिव बनाए विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज अशोक, या मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, सो एज, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अशोक, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, बट आई टोल्ड यू दैट व्हेन वन हैज more better quality or more degree than other, then what you use, you should use so। जब इक्वल है तो एस ठीक लगता है। नॉट द बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज अशोक, सो हमने देखो एक नेगेटिव वर्डिंग्स डालना पड़ा, नो, तो कोई भी उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, किससे, अशोक से ज्यादा। तो अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लगाना पड़ता है, दैट विल सी इन सब्सिक्वेंट वर्ड्स। एग्जांपल्स, सो दिस इज हाउ वी मेक सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, किया गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। नॉट द मेटल इज सो प्रेशियस एज गोल्ड, क्या समझ गया होगा आप, सबसे ज्यादा प्रेशियस कौन है, गोल्ड। कंपैरेटिव, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। यहाँ पे देखिएगा गुड, बेटर, बेस्ट, कई वर्ड्स के जो है आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते ERNST, उसको उसमें आगे मोर या मोस्ट लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ प्रेशियस है, वी डोंट से प्रेशरर एंड प्रेशरिस्ट, दैट्स रॉन्ग इंग्लिश। तो मोर प्रेशियस एंड मोस्ट प्रेशियस, कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल है, यू कांट से ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट, दैट्स रॉन्ग इंग्लिश। हमें क्या बोलना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। और मोस्ट क्या रहेगा, सुपरलेटिव, यू नो, दो और दी, when it starts from vowel we say the, the or the is used before most or any other superlative degree word। the best देखोगे आप यहाँ, है ना, तो सुपरलेटिव में हमेशा the लगाना। now this is also some hidden things that I am conveying you। तो यहाँ so precious as gold is converted into gold is more precious than any other metal